Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra Ki Jai Shri Shri Gaura Nitai Ki Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Hare Krishna. So welcome back to all of you. Continuing to do chapter number 9. Finished 27th shloka. Chanting of shloka number 27 yesterday. And 27th shloka we learned that whatever we do, we must do it for Krishna. जो भी हम करते हैं, हमें कृष्णा के लिए करना चाहिए. यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम. कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि आप ये सब कार्य जो धार्मिक कार्य है, सब कार्य मतलब जो धर्म के दायरे में आता है, वो सारे कार्य मेरे लिए करो, मुझे अर्पण करो. तत्कुरुष्व मदर्पणम. So he has made it very clear. Whatever you do means whatever you do within the boundaries of dharma. Not that whatever you do means अच्छा मैं डाका डालूंगा, खून करूंगा, अनैतिक कार्य करूंगा और मैं कृष्णा को अर्पित कर दूंगा क्योंकि कृष्ण भगवान ने बोला. That is not what Krishna is telling. तो अधार्मिक कार्य क्या हम करके कृष्णा को ऑफर कर सकते हैं? So can we do adharma and offer it to Krishna? No. Because Krishna is specifically telling here for dharma, the actions in dharma. अधर्मिक कार्य तो करना ही नहीं है. जो अधर्म है हमें करना ही नहीं है, तो उसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है. So it is understood that Krishna, you cannot offer it to Krishna, and because it should not be done at all. So it is the duty of everyone to mold his life in such a way that he will not forget Krishna in any circumstances. तो ऐसा नहीं है कि जब कष्ट आएगा भगवान के पास भागना है और जब सुख का भोग चल रहा है तो भगवान को बोलना स्वाभाविक है. नो, इट इज वी हैव टू मोल्ड अवर लाइफ. हमें अपना जीवन को ऐसे निरूपित करना है कि हम कभी कृष्णा को नहीं बोले. तो इफ यू गो टू वृंदावन मेनी टेम्पल्स, हे नाथ मैं कभी आपको ना बोलूं. इट्स ए वेरी पावरफुल इंस्ट्रक्शन that we must not forget Krishna and we must always remember Krishna. Always remember Krishna, never forget Krishna. Smartavyam satatam Krishna vismartavyam na jatuchit. That is the principles. कभी भी कृष्णा को हमें भूलना नहीं चाहिए. And that is how we must mold our life. And the easiest way to mold our life in this direction, where I will never forget Krishna and I will always remember Krishna, is by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this Hare Krishna mantra is very powerful. Simply by chanting Hare Krishna mantra, we actually follow all the instructions that Krishna is giving in Bhagavad Gita. We will get the power, intelligence, wisdom to follow all the instructions that Srila Prabhupada has mentioned in his books. ऐसे कैसे करेंगे, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कैसे करेंगे, इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस. कितने रूल्स रेगुलेशंस हैं, कितना आसान है कृष्ण भावनामृत जीवन. एंड प्रभुपाद हैज मेड इट इवन मोर सिंप्लीफाइड फॉर अस. और इतना तो करना पड़ेगा.
ये बड़ा ऑस्टेरिटी नहीं है, और ये तो हमारे लिए इट इज गुड फॉर अस। जो ये प्रिंसिपल्स फॉलो करना है, ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए अच्छी बात है। So there is no second thought of whether we should follow it or whether we should not follow it. Krishna recommends herein that one should work for him. Again, within the boundaries of dharma. Work doesn't mean that any work I will do, I'll offer to Krishna. Of course, when somebody does that in an adharmic way and offers it to Krishna, Krishna is so merciful that कभी कभी वो उसको एक्सेप्ट करके उसको सही रास्ते पे लेके आ जाते हैं, फॉर एन इनोसेंट सोल, मिसगाइडेड सोल। तो ही विल सर्टेनली डू दैट, बट इफ इट इज डन इंटेंशनली, इफ इट इज डन विथ इल इंटेंशंस, एंड कृष्णा विल नॉट एक्सेप्ट इट। एवरीवन हैज टू ईट समथिंग टू लिव, सबको खाना कुछ, तो भगवान को अर्पित करो और खाओ। देन therefore he should accept the remnants of foodstuffs offered to Krishna. भगवान कृष्ण के उच्छिष्ट प्रसाद हमें लेना है। Any civilized man has to perform some religious ritualistic ceremonies. कोई भी जो धार्मिक व्यक्ति है वो कोई ना कोई धर्म वाला कार्य करेगा। तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं, वो मेरे लिए अर्पण करो। So do it for me. So नाइकी का स्लोगन जस्ट डू इट, तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का स्लोगन है। व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस का स्लोगन? डू इट फॉर कृष्णा। सो नॉट जस्ट डू इट फॉर कृष्णा, कृष्णा के लिए करो। एंड दिस इज कॉल्ड अर्चना। जब हम कुछ करते हैं कृष्ण भगवान को, दिस इज अर्चना। तो अर्चना का मतलब क्या है? जो हम करते हैं कृष्ण भगवान के लिए उसको अर्चना बोला जाता है। एवरीवन हैज अ टेंडेंसी टू गिव समथिंग इन चैरिटी, तो कृष्णा सेज गिव इट टू मी। आपको दान देना है ना, मुझे दो, तो मैं सोर्स हूं। आपको पानी डालना है ना, मैं बेर हूं, सब सारे पत्तों शाखों का मैं बेर हूं, मेरे ऊपर पानी डालो, मुझे पानी दो। तो दैट इज द प्रिंसिपल। So this means that all surplus money accumulated should be utilized in furthering Krishna consciousness movement. और Prabhupada ji is clarifying it. ऐसा नहीं कि जो आप कमा रहे सब देना है। वो अगर उतना आपका श्रद्धा है कृष्ण भगवान के ऊपर, कभी आप लॉस में नहीं आएंगे। लेकिन Prabhupada is telling you, yes, you can be practical, utilize the money that you have to utilize to lead your decent life and to have some savings for emergencies, but whatever is excess, that you offer to Krishna. तो इसमें बुरी बात क्या है? What is wrong in this principle? And वो भी किसके लिए? In furthering Krishna consciousness movement, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके आप पार्ट हो। आप इसका पार्ट क्यों हो? क्योंकि आपको श्रद्धा है कि ये पथ पे जाने से मैं कृष्ण भगवान तक पहुंच जाऊंगा। ऑलरेडी मैं कृष्ण भगवान का हूँ, कृष्ण भगवान तक पहुंच चुका हूँ, बस फॉर्मली उनके चरण में लगना है और हमें उनका सेवा कंटिन्यू करना है। If anyone practices meditating on Krishna 24 hours by chanting Hare Krishna mantra round his beats, is surely the greatest yogi. तो 24 घंटे हम कृष्ण भगवान का स्मरण कर सकते हैं। नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा by chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। लेकिन हम सब हरिदास ठाकुर नहीं है जो 22 घंटे चैंटिंग करते थे, 2 घंटे अपने दिन नित्य कार्य के लिए वो 2 घंटे रखते थे। So we can't do that. So Prabhupada has given us a plethora of activities, इतना varieties of activities, services कि everything is equivalent to chanting। और जब कुछ सर्विस नहीं है तो then you can hold जपा माला, जपा बीट्स के बैग के अंदर हाथ डालो, माला पकड़ो और हरे कृष्ण मंत्र जपा करो। और ये तो कंक्लूजन 6th चैप्टर का भी था, ग्रेटेस्ट योगी योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना। Krishna told that in 6th chapter conclusion also, and here Prabhupada is again mentioning that कि ये योगी है, this is the biggest yogi, one who offers everything to Krishna
who never forgets Krishna and always remembers Krishna. So today we will continue shloka number 28. In shloka number 28, Krishna is talking about Yukta Vairagya. 27, 28 talks about Yukta Vairagya. ये वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा. कहते हैं महाप्रभु बोलते हैं कि वैराग्य ही निज भक्ति का योग है. लेकिन वैराग्य मतलब क्या है? फल्गु वैराग्य करना है क्या? फल्गु वैराग्य मतलब न जानकारी है कुछ, बस वैराग्य आ गया, मतलब सबको रिजेक्ट कर दिया. So that is not वैराग्य. हरि संबंधी वस्तु ना, सारे वस्तु हरि का संबंध में है. तो वैराग्य का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल वैराग्य? युक्त वैराग्य. जो कृष्ण भगवान का है वो कृष्ण भगवान के लिए अर्पण करेंगे, ये युक्त वैराग्य है. सो दैट इज बीइंग थॉट हियर इन दीस श्लोकास. शुभा शुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनहि संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि. So what is Krishna telling here? In this way, तो ऐसे करते करते you will be freed from all reactions to good and evil deeds. शुभ अशुभ फलैर एवं मोक्षसे. तो शुभ और अशुभ कार्यों से आपको मोक्ष मिल जाएगा, कर्म बंधन से मोक्ष मिल जाएगा. शुभ कार्य से भी कर्म बंधन, उसको भोगने के लिए रहना पड़ेगा या फिर अगले जन्म में आना पड़ेगा. अशुभ कार्य करने से तो रहना तो जरूरी हो जाएगा भोगने के लिए. पाप कार्य का जो रिएक्शन है वो भी कर्म बंधन हो गया. तो शुभा शुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने. तो ये ऐसे करने से, कैसे करने से? यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यत. जो भी आप करेंगे कृष्ण भगवान के लिए करेंगे. जो आप ना करेंगे वो भी कृष्ण भगवान के लिए करें, मतलब कृष्ण भगवान के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि कृष्ण भगवान ने बताया है कि हमें नहीं करना है. दैट इज ऑल्सो एन ऑफरिंग टू कृष्णा. नॉट डूइंग those things that Krishna has told us not to do is also an offering to Krishna. So bhakti is two. One is positive, active, action-based bhakti. Another one is not doing certain things. That is also bhakti. So by this principle of renunciation, sannyasa yoga yukta atma, you will be liberated and come to me. Vimukto. आप विमुक्त हो जाएंगे. और कहाँ जाएंगे? विमुक्त मतलब क्या यहीं पे सड़ेंगे? नहीं. माम उपैष्यसि. बार बार कृष्णा चौथे अध्याय में, दूसरे अध्याय में, छठे अध्याय में, अब 9वें अध्याय में, 7th, 8th, 9th, every chapter he is telling us माम उपैष्यसि. मेरे लिए कार्य करो, भक्त बनो, आप मेरे पास आएंगे. कृष्ण भगवान स्वयं बोल रही है, गिविंग यू द ग्रेटेस्ट एश्योरेंस. सो संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो, you'll get liberated. माम उपैष्यसि. अब मेरे पास आएंगे. So you see, dharma is to be therefore practiced for spiritual purity. It's not, dharma is not meant for material prosperity. Or next step artha hai. Dharma is not meant for that. Dharma is meant for spiritual purity. In the process, artha को कमाना है, पैसे को भी कमाना है, लेकिन वो in the process है. It is not the main business. Finance is not the main business of dharma. Dharma's main business is to become spiritually pure. In the process, you will also, in a way that is recommended by Shastra, you will also get your remuneration. That is okay. जैसे प्रसाद मिल रहा है, भक्ति करने से प्रसाद मिल रहा है. पहले हमारा ध्येय क्या है? भक्ति है, लेकिन उसके लिए हमें प्रसाद भी मिल रहा है. So we must seek not higher material happiness. तो और काम करो, और काम करो, और सुख भोगना है, सुख दुख. So और सुख भोगना है, और सुख भोगना है. तो हायर हैप्पीनेस स्वर्ग लोक में भी मिलेगा, लेकिन वहां जो हैप्पीनेस आप भोगेंगे, सुख भोगेंगे, उसकी वजह से आपको यही रहना पड़ेगा मटेरियल वर्ल्ड में.
So going to the higher planet is not a big achievement. Going beyond the higher planets in the material world is our business. That means transcending material planets and दिव्य लोक पहुंचना, वैकुंठ लोक पहुंचना, गोलोक पहुंचना और वहां भक्ति कार्य करना, ये हमारा अंतिम उद्देश्य है. So we must seek higher than material happiness. That is the higher taste. तो material happiness में भी आप स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट मिलेगा आपको, लेकिन सिर्फ वो material happiness ही रहेगा जो आपको पास के रखेगा, बंधन में रखेगा, कर्म बंध नहीं. हमें उससे विमुक्त होना है. We must go beyond it. और वहां पे भी हमें भगवान की संतृप्ति जब करके सेवा करेंगे, हम विमुक्त हो जाएंगे. So we must remember that जो हम अभी कर रहे हैं, तत्काल जो भौतिक कार्य जो कर रहे हैं, that is a temporary thing, but that should be the ticket to the eternal. तो जिस स्थिति में हम हैं, स्थाने स्थिते श्रुतिगता, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, जिस स्थिति में हो तो अगर धार्मिक हो उस स्थिति में रहो और अपना कार्य करते रहो. धीरे धीरे गुरु के आशीर्वाद से, भक्तों के समागम से, भक्तों के एसोसिएशन से, इंस्ट्रक्शन से, you will transcend and you will start doing that which matters the most. So we must seek security not just in the soul but in the super soul. केवल आत्मा उद्धार होना ही नहीं है, आत्मा को भगवान से जोड़ना ये भी हमें चाहिए. To satisfy the super soul Krishna is the main thing, not to satisfy the soul. क्योंकि सुपर सोल को satisfy करने से soul satisfy automatically हो ही जाएगा. So to understand God's provision, we must first understand God's vision. भगवान क्या चाहते हैं हमारे जिंदगी में, अगर हमें जानना है तो भगवान की दृष्टिकोण को हमें समझना चाहिए. Because we are, looking at certain things and planning for our future. लेकिन भगवान हमारा फ्यूचर देख के, हमारा आध्यात्मिक फ्यूचर देख के हमारा प्रेजेंट को वो एक शेप दे रहे हैं उसके लिए. So we must have faith in the Lord's plans. The Lord has a plan for all of us and we must have faith in this. So when worry accelerates the imagination, let faith become the brake. तो ज्यादा चिंता नहीं करना है, कल का क्या होगा, कल हो ना हो, लेकिन ये बात तो है ही नहीं है, क्योंकि कल तो रहेगा. बिकॉज आप सनातन हो, आप भी रहेंगे, एंड आप रहेंगे, भगवान श्री कृष्णा रहेंगे, यही सत्य है. आप भी रहेंगे, आत्मा रहेगा, परमात्मा भी रहेंगे. बाकी रहे ना रहे, जो आपके पोजीशन से इस वर्ल्ड में, वो तो नहीं आएगा आपके साथ. सो अल्टीमेटली कौन रहेगा बिटवीन यू एंड द सोल, यू द सोल एंड सुपर सोल. जब ये द अल्टीमेट ट्रूथ है, सो आवर aim should be to strengthen our relationship with that super soul, which is our eternal relationship. So Prabhupada in this purport of 28 says, one who acts in Krishna consciousness under superior direction is called yukta. One who acts in Krishna consciousness, lekin wo should be guided. It should be by the guidance of devotees. It should be by the guidance of Shastra. It should be by the guidance of Guru. Then only we can say that we are properly situated in Krishna consciousness. So the technical term is Yukta Vairagya, using things that belong to Krishna for Krishna, including me. I also belong to Krishna, utilizing myself in the service of Krishna, utilizing our family, which belongs to Krishna. That is also an soul, wife, soul, child soul. So उसको भी भगवान की सेवा में लगाना. All the resources belong to Krishna, सर्वलोक महेश्वरम. तो उसको कृष्ण भगवान की सेवा में डालना, ये युक्त वैराग्य है. Rupa Goswami says that as long as we are in this material world, we have to act.
तो कृष्ण भी भगवत गीता में बोल रहे हैं कि निष्क्रिय होकर हम बैठ नहीं सकते, हमें कार्यशील रहना है। तो और कार्यशील तो रहना है, तो ऐसे कार्य क्यों ना करें जिससे हम विमुक्त हो जाएंगे। कर्म बंधन में रहने वाला कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए, वो विमूढ़ आत्मा करते हैं। जो युक्त वैरागी है, जो भक्त है, वो वही कार्य करेंगे जो उनको और कृष्णा के पास लेके जाएगा। That will always remember, make them remember Krishna, and that will never allow them to forget Krishna. So those activities only they will engage. So such activities clear the mirror of the mind, cheto darpana marjanam, and the actor gradually makes progress in spiritual realization. सर्वात्म स्नपनम परम विजयते, तो परम विजयते क्या है? श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो परम विजय वही है जिससे जिससे हमारा जीवन में श्री कृष्ण संकीर्तन लगातार होता रहेगा। Then, therefore, at the end he becomes liberated. तो अंत में विमुक्त हो जाएगा। कृष्ण प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में अपना सेवा इस जीवन में कर रहा है, वो ऑलरेडी विमुक्त है। उनका उनका उद्धार ऑलरेडी हो चुका है, उनका सुधार ऑलरेडी हो चुका है। सो ही एंटर्स इनटू द प्लैनेट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। वो कर्म बंधन से ये भौतिक जगत में नहीं रहेगा, भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम पहुंच जाएगा। सो कृष्ण इज टेलिंग माम उपैश्यसि, मेरे पास आएगा, ही विल कम बैक होम। ये उसका घर है, हम सबका घर है। भगवान कृष्ण बार बार याद दिला रहे, आपका घर, ये आप यहाँ पे तत्काल रह रहे हो। कन्नड़ा में एक भक्त है पुरंदरदास, उनका कवन है अल्लीदे नम्मने इल्लिरुवुदु सुम्मने। हमारा घर तो वहां है, यहाँ पे हम ऐसे ही हैं, क्योंकि हम अपने कर्म से यहाँ पे आके रह रहे। तो जब तक रहेंगे तो हम एक आश्रय में रहेंगे, और जब भक्तों के संग में आएंगे कृष्ण आश्रय में हम रहेंगे, वो सही आश्रय है। So the 5 stages of liberation, it is specified that the devotee was always lived his lifetime under the direction of the Supreme Lord, so he will go back to Godhead. जो भक्त भगवान के आश्रय में, गुरु के आश्रय में, भक्तों के संग में रह के कार्य कर रहा है, वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाएगा। He will directly associate with Supreme Lord. Anyone who has no other interest but to dedicate his life to the service of the Lord is actually sannyasi. So who is a sannyasi? जो कावी मतलब सैफरन कपड़ा पहना है, not necessarily a sannyasi. Sannyasi can be in white clothes also. But sannyasi का मतलब क्या है? जिसका कोई और मतलब नहीं है, जिसका कोई और इंटरेस्ट नहीं है, केवल कृष्ण भक्ति ही उसका लाइफ में है, तो वो सन्यासी है। Such a person always thinks of himself as eternal servant, dependent on the supreme will of the Lord. तो हमेशा वो कृष्ण, अपने आप को कृष्ण का भक्त ही समझेगा, ये सन्यासी है। So and he is dependent on the supreme will of the Lord. अपना कोई योजना नहीं बना रहा है, अपना बुद्धि उपयोग कर रहा है, लेकिन he is always dependent on Krishna. This is a sannyasi. This is a devotee. Whatever action he performs it as a service to the Lord. तो कृष्णा बार बार जो बोल रहे वही वो करेगा. Do it for me. You should always remember this Krishna consciousness slogan. Do it for Krishna. So it is said that by Vaishnava authorities that even the most intelligent person cannot understand the plans and activities of pure devotee. शुद्ध भक्त का क्या संकल्प है वो कोई भी समझ नहीं पाएगा. So what is Prabhupada's plans for us? We should not try to analyze it. What is Krishna's plans for us? We must not try to analyze it. We must just surrender to it. तो उनके शरण में हमें बेझिझक जाना है. So Vaishnaveda kriya mudra vignena bhujaya. A person who is thus always engaged in the service of the Lord, who is always thinking and planning how to serve the Lord, he is considered to be completely liberated. विमुक्त आत्मा कौन है? हमेशा यही सोच रहा है कृष्ण भगवान को क्या चाहिए,
कृष्ण भगवान को कैसे संतृप्त करें, मेरे गुरु क्या चाहते हैं, मैं गुरु को कैसे मैं संतृप्त कर सकूं. This kind of thinking, this person is a liberated person. His going back home, back to Godhead is guaranteed. Prabhupada is mentioning this boldly. कि गारंटी दे रहे हैं, जो ऐसे करेगा वो कृष्ण भगवान के धाम में जाएगा, कृष्ण भगवान के सानिध्य में रहेगा, कृष्ण भगवान का सेवा करेगा. Who can give this guarantee? Only a pure devotee can give this guarantee. And is above all the materialistic, is above all materialistic criticism, just as Krishna is above all criticism. तो भौतिक कोई रूल्स रेगुलेशन से बंधा नहीं है वो, because his now vision is a superior vision. He will do everything for the higher purpose. He will not do it for dharma artha काम मोक्ष to stay in this material world. उसका ध्येय है प्रेमो पुमार्थ महान, पंचमा जो पुरुषार्थ है, प्रेमो पुमार्थ महान. What is that? Krishna prema. That is the greatest of all the पुरुषार्थ. तो उसके लिए जो करना है वो करेगा. So saying this, Krishna takes us further into Bhagavad Gita, and Krishna now tells us, Samoham sarva bhuteshu name dveshosti na priyah ye bhajanti tu mam bhaktya mahi te teshu chapyaham. So Krishna is telling here, so पहले तो प्रभुपाद जी गारंटी दे रहे गोइंग बैक टू कृष्णा, एंड कृष्णा अब कुछ विशेष बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? आई एनवी नो वन. तो जो भक्त है, जो भक्त नहीं है उसके ऊपर ईर्ष्या भगवान के लिए नहीं है, भगवान उसके ऊपर ईर्ष्या नहीं रखते. तो लेकिन जो भगवान के ऊपर ईर्ष्या रखते हैं उसको हम बोलते हैं नास्तिक. लेकिन भगवान इसके ऊपर भी ईर्ष्या नहीं रखते. आई एनवी नो वन नमे द्वेष्यो, नॉर एम आई पार्शियल टू एनीवन, समोहम सर्वभूतेषु, हर जीवी के लिए मैं सम हूं. आई एम इक्वल टू ऑल. बट whoever renders service unto me in devotion is a friend. ये भजन्ति तो माम भक्त्या, लेकिन मेरे न अस्ति न प्रिया, न मे द्वेष्य अस्ति न प्रिया. I don't love anybody, I don't hate anybody, I don't envy anybody, I am not partial to anybody. But again he's telling here, ये भजन्ति तो माम भक्त्या. So that who renders service unto me in devotion is a friend, वो मेरा दोस्त है. तो ऐसे लग रहा है अरे कृष्णा तो उल्टा बोल रहे हैं अभी, मई थे and I am also a friend to him, तेषु चाप्यहम, मैं उसका मित्र हूं और वो मेरा मित्र है. अरे अभी तो पहले साल में पहले लाइन में कृष्णा बोल रहे समोहम सर्वभूतेषु, और फिर अभी बोल रहे जो मेरा भक्ति करेगा वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूं. ये तो कुछ जम नहीं रहा. इट इज एक्चुअली मेकिंग परफेक्ट सेंस. समोहम का मतलब क्या है? जो सर फोड़ रहे हो उसके लिए भी आप रिवार्ड दे रहे हो, और जो किसी को बचा रहे हैं उसको भी आप रिवार्ड दे रहे हो. ये समोहम नहीं है. ये समोहम कैसे हो गया? जो सर तोड़ा उसके लिए आपने रिवार्ड दे दिया, जो सर को बचाया उसको भी आपने रिवार्ड दे दिया, मतलब यहाँ पे आपने जाति किया ना. दैट इज नॉट समोहम. समोहम का असली मतलब है इसने गलत कार्य किया, दंड मिला, इसने सही कार्य किया, इसको रिवार्ड मिला. ये समोहम है. Why it is समोहम? बिकॉज अगर ये भी सही कार्य करता इसको रिवार्ड मिलता, और ये अगर गलत कार्य करता इसको दंड मिलता. This is samoham sarvabhuteshu. Not that see like a teacher. Samoham sarvabhuteshu. मैं सबके लिए समान हूं, चाहे वो लिखे कुछ ना लिखे, बकवास लिखे, सबको मैं 90 मार्क्स दूंगा. क्या ये समोहम है? नो. ये तो अन्याय हो गया ना बहुत लोगों के साथ. समोह मतलब जिसने 1 मार्क का लिखा उसको 1 मार्क मिला, जिसने 90 मार्क्स का लिखा उसको 90 मार्क्स मिला. ये भी लिखता तो इसको भी मिलता, और ये नहीं लिखता तो इसको नहीं मिलता. दिस इज समोहम. सो एंड
ऑब्वियसली जिसको 90 मिला टीचर बोलेगा वाह वाह कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, तो ही इज अ गुड स्टूडेंट। तो ये क्या, इज इट पार्शियलिटी? दिस नॉट पार्शियलिटी, दिस इज रियलिटी एंड दिस इज हाउ इट शुड बी। हाउ कैन दिस बी रॉन्ग? दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस वी मस्ट अंडरस्टैंड। So there are teachers here in this. I'm very sure they agree with me. You are not partial to your students. When you give them 90 marks, you give them because they have performed for 90 marks. And somebody you fail, you are not being partial to them. You are failing them because they deserve to fail. But you make all efforts to make sure that this person gets an opportunity to pass. But you will not be partial to them. So this is Samoham Sarva Bhuteshu. So that is very beautifully explained in this purport. One may question here that if Krishna is equal to everyone, no one is a special friend, then why does he take special interest in devotees? Why is teacher taking special interest in somebody who's getting 90 marks, giving him more tips? He's taking even more, actually she's taking even more interest in the person who's failing. स्पेशल क्लासेस करना है, अरे ये बच्चा फेल हो रहा है, इसको स्पेशल अटेंशन देना है, इनको दूसरा स्पेशल अटेंशन देना है, इनको प्रोत्साहन देना है, ये दूसरा स्पेशल अटेंशन है, इनको टाइम देना है, स्पेशल टाइम देना है। दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ अटेंशन, दिस इज समोहम। सो दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, ये जाति नहीं है, ये पार्शियलिटी नहीं है। तो आई एम वेरी श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ what is being said. The Lord claims that every living entity in whatever form is his son. तो समोहम सर्वभूतेषु तो हो ही रहा है, सबको वो अपना पुत्र मानते हैं, अपना अंश तो है ही, सबको अपना अंश ही मानते हैं। So just like a cloud which pours rain all over, तो बारिश तो हर जगह आएगा, लेकिन जहां पे regardless of whether it falls on rock or land or water, तो वो नहीं देखेगा अरे ये तो पत्थर है, इसके ऊपर नहीं गिरना है, अरे इस आदमी के ऊपर नहीं गिरना है, ये नास्तिक है, नहीं, सबके ऊपर बारिश गिरेगा। Then, but for his devotees, he gives specific attention. Please understand the word here is specific attention, what they deserve. Respective attention, it is called. Due attention. फेल हो रहा है उसको एक पर्टिकुलर अटेंशन, जो अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है उसके लिए दूसरे टाइप का अटेंशन, दैट इज समोहम। Such devotees are mentioned here. They are always in Krishna consciousness and therefore they are always transcendently situated in Krishna. राधा रानी को अति प्रिय क्यों मानते हैं? Because she is the greatest devotee, not because she is a woman. No, it is not for that Krishna is having so much of affection for Radha, so much of love that he himself is ready to fall at the feet of Radharani. He is ready to massage her feet. He is ready to, bow down to her. So, to such a person, जैसे कि कोई टीचर अपने होनहार शिष्य को नमन करते हैं, they appreciate in an appreciative way. That way, Krishna loves Radharani a lot because Radharani loves Krishna a lot. That is this reciprocation. The Lord here says distinctly, "Mai te," in me. तो दे आर इन मी, मेरे और राधा और कृष्णा ना है अन्य, दे आर नॉट डिफरेंट एट ऑल। इतना मतलब इन मी इज सो मच एप्लीकेबल टू राधा रानी। Whoever surrenders unto me, proportionately I take care of him. E yatama prapadyante asti na priya. So he's telling na dveshya na asti na priya. I don't envy, I don't, unnecessarily be partial. When a diamond is set in a golden ring, it looks very nice. वज्र को तो अंगूठी में, सोने का अंगूठी में डालेंगे तो उसका निखार बढ़ जाता है। The gold is glorified. तो इससे स्वर्ण का मतलब क्या है? The status of gold itself has been glorified. At the same time, diamond is also glorified. तो जब भक्त और भगवान साथ में रहते हैं, दोनों का ग्लोरिफिकेशन होता है। अर्जुन है साथ में, भगवान है साथ में, राधा रानी है साथ में, भगवान है साथ में, दोनों का ग्लोरिफिकेशन।
इनका भक्ति का ग्लोरिफिकेशन और इनका रेसिप्रोकेशन का ग्लोरिफिकेशन, भक्त वत्सल होने का ग्लोरिफिकेशन. द लॉर्ड इज अ डायमंड, सो दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी नाइस. भक्त अंगूठी की तरह है, स्वर्ण अंगूठी की तरह, और भगवान उसमें हुआ एक वज्र है, और सबसे कीमती वज्र है, जो अत्यमूल्य वज्र है, दैट विच defeats all other diamonds. So the Supreme Lord becomes the devotee of his devotees. तो भगवान भक्त वत्सल बन जाते हैं, मतलब he becomes the servant of his servant, and Krishna is the epitome of that. आपको पहले ही बताया था, विष्णु मास्टर बन के सेवा करता है, बिकॉज इज इन द ऐश्वर्य भाव. जो राम का शरण में जाते वो मित्र बन के और सेवा करता है. वो हनुमान जी का सेवा मित्र बन के, सुग्रीवा का सेवा मित्र बन के किया. लेकिन भगवान श्री कृष्णा who is perfect in everything, अच्युता, he becomes the सेवक of his सेवक्स, servant of his servant. तो युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में घोड़े के तबेले में घोड़े को दोया उन्होंने, और घोड़े को घास खिलाया. तो जिसके घर में भगवान को फूल लेके जाते हैं, उसके घर में भगवान घास लेके आता है. घास लेके आता मतलब आपको घास खिलाने के लिए नहीं, मतलब वो आपको तो भरपूर दे देगा, जैसे कि सुदामा को दे दिया. आपके घोड़े के लिए भी वो घास लेके आएगा. ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, और वो खुद खिलाएगा. मतलब घोड़े को घास कौन खिलाता है? घर का नौकर खिलाता है. तो ऐसा कार्य भी कृष्ण करेगा. सो इफ अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन द डिवोटी एंड द लॉर्ड, देन देयर इज नो पर्सनलिस्ट फिलॉसफी. तो ये अगर एक्सचेंज नहीं है, तो ए पर्सनल रिलेशनशिप कैसे हुआ? कैसे हम बोल सकते हैं कि भगवान एक व्यक्ति है, हम भी एक व्यक्ति है? व्यक्ति है मतलब दो व्यक्ति, मतलब देयर इज एक्सचेंज ऑफ रसा, देयर इज एक्सचेंज ऑफ लव, देयर इज एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स. तो भक्त और भगवान के बीच में यही होता है. एंड नो रेसिप्रोकेशन बिटवीन सुप्रीम एंड लिविंग एंटिटी, देन द पर्सनलिस्ट फिलॉसफी इज डिफीटेड. तो लेन देन, बट दिस इज आध्यात्मिक लेन देन, नॉट मेटेरियलिस्टिक बिजनेस. So the Lord is compared to a desire tree. Whatever one wants from this desire tree, the Lord supplies. आपको भक्ति चाहिए, भक्ति मिलेगा. मुक्ति चाहिए, मुक्ति मिलेगा. भुक्ति चाहिए, भुक्ति मिलेगा. अकाम सर्व काम मोक्ष कामा, सब कुछ भगवान कृष्ण दे सकते हैं. What you are asking, you are getting. तो आप दुख मांग रहे हो, हम क्या दुख मांग रहे? दुख क्यों आ रहा है? आप एक्चुअली दुख मांग रहे हो. भौतिक चीजें मांगना मतलब दुख मांगना, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, उसका अस्तित्व है ही नहीं, वो विनाश हो जाएगा. जब वो चला जाएगा आप तो रोएंगे. तो आप दुख ऑलरेडी मांग रहे हो, तो भगवान को हम ब्लेम नहीं कर सकते. द लॉर्ड्स रेसिप्रोकेशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अंडर द लॉ ऑफ कर्मा. तो भगवान का जो रेसिप्रोकेशन है, इट इज नॉट बाय लॉ ऑफ कर्मा. वो बिजनेस नहीं कर रहा है, वो छप्पड़ फाड़ के दे रहा है कृष्णा. और जो हमें दंड मिलना है वो कम करके he is giving us. So we must understand this situation. Devotional service of the Lord is not an activity of this material world. गोलोकेर प्रेम धना भक्ति, और हरि नाम संकीर्तना भक्ति का कलयुग का पहलू है. It is the part of spiritual world where eternity, bliss and knowledge predominate. सच्चिद आनंद जहाँ पे अस्तित्व में है, वो गोलोक धाम है. सो भक्ति भी वहीं से आ रहा है, हरि नाम भी वहीं से आ रहा है. So let's all be in this mode of bhakti and make our lives successful. So we will stop here today. We will meet again tomorrow, Wednesday, for another episode for further 2 or 3 shlokas. Thank you very much for joining me today. Hare Krishna.